Learners, we were getting information about phrasal verb be able to, and now last and third use of be able to, that is will be able to or shall be able to, means here we are to indicate future ability, future capacity or future possibility with the help of will be able to or shall be able to, and that is third use of be able to. Okay, yes, so heading is will or shall, then you can use be able to. Four rules. इंटेंशनली आई गिव फोर रूल्स, जानबूझ के. क्यों? क्योंकि सिर्फ अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू. ओके, सो दीज फोर रूल्स you must know. Most of the students, they may use will be able to, but four rules you must know. That's why I am giving first subject, after that will or shall. Nowadays mostly only will is used, but be conscious, you can use shall. Shall, then be able to, and which form of verb? First form, then object, remaining part of sentence. Negative. Negative rule should be subject, will or shall, and here you are to use not. Then be able to, V1, object and RPS. Be conscious. After will and shall, I use there not. Okay. Interrogative. Interrogative. Will or shall, you can use oblique, no doubt. Will or shall, then subject, after that be, directly you can use able to. Which form of verb? First form, object, remaining part of sentence, and don't forget to give question mark. Okay, yes. Now interrogative, negative. So just you are to add again not here, same will and shall plus subject, then not, and be able to, first form of verb plus object plus RPS, and don't forget to give question mark. These are four rules, so try to get it. Again I am giving information, I am repeating it. What is topic? Will be able to or shall be able to. With I and we, generally shall is used with I and we. Otherwise you can use will nowadays, no doubt, but be conscious. Functions. Here will be able to means we can indicate future possibility, future capability, future ability. I will take four examples. Look, again I will give the support of Marathi and Hindi language. मराठीमध्ये हे वाक्य करू शकेल, करण्यालायक होईल, सक्षम होईल किंवा योग्य होईल असे वाक्यरचना तुम्ही घेऊ शकता. इन हिंदी करने लायक बनेगा, कर पाएगा, कर सकेगा अशा वाक्यरचना येतात. बघूयात आपण वाक्यांमध्ये. मला असं म्हणायचंय, तुम्ही इंग्रजीमध्ये भाषण देण्यास सक्षम व्हाल किंवा भाषण देण्यास योग्य व्हाल, त्या लायक व्हाल असं. आप अंग्रेजी में भाषण देने लायक होंगे या भाषण दे सकेंगे अशी वाक्यरचना. पात्र होणे असं जे घेतो ना आपण वाक्य. आई यूज्ड हियर अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन. मराठी और हिंदी में मैंने अफर्मेटिव वाक्य रचना दी है, तो आप भी कृपा करके अंग्रेजी में भी अफर्मेटिव ही रूल यू शुड यूज हियर. लुक, सब्जेक्ट हु, यू, आफ्टर दैट रूल पे नजर, विल. ओके, बी एबल टू, भाषण देणे,
you can use give speech. Instead of give I am using deliver. इसका मतलब give गलत है ऐसा नहीं है. give you can use deliver speech in English. You will be able to deliver speech in English. So here I am indicating future ability. आप अंग्रेजी में भाषण दे सकेंगे. तुम्ही इंग्रजीमध्ये भाषण देण्यास पात्र व्हाल, लायक व्हाल असं वाक्य आहे. बी कॉन्शियस. बी एबल टू इट इज फ्रेजल वर्ब. ये एक फ्रेजल वर्ब आहे. ओके. पुढील वाक्य. राकेश इतके पैसे किंवा इतकी रक्कम एक रकमी देऊ शकेल का. क्या राकेश इतनी सारी रकम एक वक्त में, जिसे अपन एट अ टाइम, एक समय में दे पाएगा. ओके. यस. हिंदी में अपन क्या शुरू में लेते हैं, मराठीमध्ये का शेवटी घेतो. हियर आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन. एक प्रश्न पूछा है मैंने, तो यू शुड यूज अगेन हियर इंटरोगेटिव रूल ऑफ विल बी एबल टू. रूल पे नजर. विल सब्जेक्ट हु, Rakesh. After that, be able to return. You can use return, no doubt. I am using here refund. Refund. अब रकम बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए मैंने ऐसा जोर दे के कहा था. तो सच अमाउंट, रुपीज यू कैन यूज, है ना. सच अमाउंट. अब एक रकम, एक साथ, एक साथ ऐसा मैंने बोला था. तो एट अ टाइम या समटाइम्स स्ट्रोक इज ऑल्सो यूज्ड. डोंट फॉरगेट टू गिव क्वेश्चन मार्क. विल राकेश बी एबल टू रिफंड और रिटर्न सच अमाउंट एट अ टाइम, एट अ स्ट्रोक. एक साथ, है ना, जैसे एकदम, एकादमात असं. तर एट अ टाइम और एट अ स्ट्रोक. नेक्स्ट सेंटेन्स आय वुड लाईक टू टेक निगेटिव्ह. ती पळण्यालायक बनणार नाही किंवा होणार नाही. जोरात असाही शब्द. ती जोरात पळू शकणार नाही असे घेऊ शकता बरं का तुम्ही. सक्षम वगैरह जैसे अपन वाक्य घेतो ना, तो यू कैन यूज हियर कैन. कैन भी आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे. अगर कैन लेते हैं तो आपको ये कट कर देना है. सेंटेंस ऐसा रहेगा आपका. कैन राकेश रिफंड, बाकी जो है वो. तो अभी ये सेंटेंस जो आगे का मैंने लिया वो देखो. ती इंट्रोगेटिव लिया था ये, इसलिए मैंने प्रश्न लिया. अब मैं निगेटिव ले रहा हूं. निगेटिव. ती जोरात पळू शकणार नाही किंवा ती जोरात पळण्यास लायक होणार नाही. इन हिंदी, वो जोर से नहीं दौड़ सकेगी या वो जोर से दौड़ने लायक नहीं बनेगी. तो अब हम लेंगे निगेटिव रचना. शी. हाँ, रूल पे नजर. विल नॉट बी एबल टू run fast. She will not be able to run fast. Here I am indicating no doubt ability or sometimes possibility, capability. It depends upon your use. If you want to use here can, the sentence would be she can not. ये नहीं लेंगे आप. ओके, ये कट कर देंगे. She can not run fast. इंस्टेड ऑफ विल आई एम यूजिंग हियर कैन. ये बाकी कट कर देना है आपको. बाकी सेंटेंस जैसे शी विल नॉट बी एबल टू रन फास्ट और शी कैन नॉट रन फास्ट. बोथ सेंटेंस हियर इंडिकेट द सेम सेंस. लास्ट सेंटेंस देखिए. अब मैं इंटरोगेटिव निगेटिव लेता हूं. इट मीन्स यू आर टू यूज फोर्थ रूल. लास्ट सेंटेंस है, मेरा ध्यान दीजिए. मला असं म्हणायचंय, विद्यार्थी हा टॉपिक समझण्यास सक्षम होणार नाहीत का. क्या छात्र यह टॉपिक या यह विषय समझने लायक नहीं बनेंगे. चलो करते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल विल, हाँ आफ्टर सब्जेक्ट छात्र विद्यार्थी, एक से ज्यादा लिए मैंने, द स्टूडेंट्स रूल पे नजर आ, आफ्टर सब्जेक्ट नॉट लेना है हमें, ओके, देन बी, हाँ उसके बाद एबल टू, अब चाहिए वर्ब, समझने समझना, अंडरस्टैंड, यह टॉपिक, ऐसा मैंने बोला था, दिस टॉपिक, लेसन, सब्जेक्ट, मैटर, यू कैन यूज, will the students not be able to understand this topic, okay, एक सेंटेंस आप मुझे बना के दिखाएंगे and you are to use this word finish, so please try to use will or shall be able to in your day to day life. खूप चांगली वाक्यरचना आहेत, कृपा करून वापरायला लागा. And if you get any difficulty, so please comment me. Okay my friends, I will stop here. Thank you.